May I come in, sir? Please come in. Good evening, sir. Good evening, Betty. Thank you, sir. Introduce yourself. Yes, sir. Sir, I come from Jhunjhunu district of Rajasthan, but my upbringing has been from different parts of India as my father serves in the Indian Army. My schooling has been from Kendriya Vidyalaya, and I have done my graduation from University of Delhi, Sri Venkateshwara College in Zoology Honours. Thereafter, I started preparing for civil services. That is civil services or RAS or civil services central government is IAS also. Sir, earlier I was preparing for UPSC. UPSC, Central. okay. Yes, sir. So it's better means it's quite easier that if you are going to prepare for a higher one and you are just bringing a very piece of that for a lower one, it becomes quite easy for you, isn't it? Sir, I wouldn't say it was very easy because I had to cover Rajasthan GK, and sir, the approach is quite different. Okay, that's good. So you are on zoology honors. Yes, sir. So where from you start studying zoology with classification? Sir, Classification. Just give me classification lower to the higher. of the animal kingdom, sir. Animal kingdom. Sir, phylum Porifera, Mhm. phylum Coelenterata, phylum Cnidaria, nematode, phylum Annelida, phylum Arthropoda, phylum Mollusca, phylum Echinodermata, phylum Hemichordata, and phylum Chordata. Annelida. Any example? Sir, these are segmented animals. I might confuse between. Hermaphrodite. Second character. Yes, sir. What is hermaphrodite? Sir, they have same sexes in single individual. Single. Both the. What the sex organs are called? Zeta, CT. Oh, I'm not. You are not Sure, aware of sir. it. That is when it's a hermaphrodite character, right? Yes, sir. Do you find any when the same character in any other animal also? Hermaphrodite. Sorry, sir, I'm not able to recall. Okay. Core data. Yes, sir. Core data means those who have central nerve cord. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, what is the theory of evolution? Oh, sorry, sir. I have been. It's been time that I revised all this. Theory of evolution, 10th class, sir. the theory of evolution. Darwin's theory, Lamarck's theory, Mendel's theory, that these are all, That they no, every organism evolves from pre-existing cells. Yes. pre-existing means protozoa. Yes, sir. What protozoa is that? Particularly amoeba proteus. That is what? Yes, sir. Amoeba Sir, proteus. it is. What is the characteristic features of an amoeba proteus? Sir, A single cell प्राणी है ये. yes, sir. Singular, and it is a prokaryote Prokaryotic. with simple cell organization and Okay. simple cell organization. So ये reproduction कैसे करता है? Amoeba proteus. Sir, by simple division. Simple division, binary fission, or only single. Okay. Have you ever heard about entamoebas? Yes, sir. What is that? Sir, Entamoeba histolyticas. Histolytica. Histolytica, sorry, sir. Yes. These organisms cause disease These in are, humans, yes. and they are found in Entamoeba histolytica small intestine. and Entamoeba gingivalis, and Yes, sir. so where they found In the small intestine. gingivalis, and in the mouth, that is histolytica. That causes what? I'm sorry, sir. Okay, no. What type of disease they cause, you don't know. These are negative amoeba. Some amoeba are positive also. Some, okay. Your father is in army. Yes, sir. Still, he's retired. Serving. Where is posted? Sir, Delhi. Delhi. Very headquarters. Yes, sir.
what are his duties nowadays? Means at the headquarters, what sort of duties are they are aligned to the administration or to the field? Sir, now they are aligned to the administration, and he assists the commander in field visits and other administrative work. For how long is he staying back in Delhi? Sir, for the past 1 year, this is his last posting. उनके choice. फौज में रहने से उनके जो डिसिप्लिन और उनका जो काम या कार्यशैली है उससे आपने क्या क्या सीखा? Sir, first of all, discipline, and sir, then there is जनरल मानेकशॉ को क्यों याद किया जाता है? सर जनरल सैम मानेकशॉ का 1971 में जो हमने स्विफ्ट जीत हासिल की थी पाकिस्तान पर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, उनके लिए उनको याद उसमें क्या उनकी वो रही थी स्ट्रेटजी? कैमोफ्लाज करके एक चीज थी, वो उससे उन्होंने वो विक्ट्री ली थी. व्हाट इज कैमोफ्लाज? सर कैमोफ्लाज का जनरल मतलब तो ये होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ मिल जाएं. जैसे कॉम्बैट यूनिफॉर्म होती है आर्मी में. एंटी कैमोफ्लाज क्या है? सर डिस्टिंग्विशली फाइंड कर सकें. डिस्टिंग्विशली फाइंड कर सकें. तो मालूम है उन्होंने क्या किया था बांग्लादेश में जब ये गए थे, फौज लड़ रही थी, तो क्या किया था उन्होंने इस तरह का जिससे उनको चीट किया, उन्होंने धोखा दिया पाकिस्तान आर्मी को? सर एग्जैक्टली नॉट अवेयर. नहीं मालूम? सर तो कब पापा से सुना तो करो इस तरह की बातें, है ना? जी सर. ये बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं. फौजियों की बातें कभी सुनो तो आपको लगेगा कि आपका भी जो क्या कहना चाहिए हौसला है वो बड़ा एलिवेट होता है, ऊपर आता है. जी सर. ठीक है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ता है. सर थैंक यू सर. आपने लिखा है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर ऑन डेंगू वैक्सीन. जी सर. ये mRNA और DNA वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है? सर mRNA वैक्सीन्स में जब जो mRNA है वो हमें इंड्यूस किया जाता है, जो ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाती है हमारी बॉडी में, जो एंटीजन फाइंड एक्ट एज एंटीजन, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम उसे रिकग्नाइज करे एंड एंटीबॉडीज बनाए. सर जो DNA वैक्सीन्स होती हैं ये इंजीनियर्ड वैक्सीन्स होती हैं. कौन सी वाली सेफ है? नॉट श्योर. एग्जांपल दे सकते हो दोनों के? फाइजर वाली जो वैक्सीन है वो mRNA या DNA? नॉट एबल टू रिकॉल. अच्छा, वैक्सीन काम कैसे करती है? सर वैक्सीन जो होती है वो एंटीजन के जो पार्ट्स, हमारे एंटीजेनिसिटी होता है उनका जो पार्ट, उससे हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्सपोजर दिलाती हैं, ताकि इन केस जब हम एक्चुअल एनकाउंटर करें किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी तैयार रहे विद द एंटीबॉडीज. तो सर सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा वो अगर जल्दी रैपिडली वर्क करेगा हमारा इम्यून सिस्टम. तो पहली बार वैक्सीन का निर्माण किसने किया? कौन सी वैक्सीन बनाई गई थी सबसे पहले? सर अगेंस्ट काउ पॉक्स. सर आई एम फॉरगेटिंग द नेम. एडवर्ड जेनर. यस सर, आई एम सॉरी. प्लीज. थैंक यू बोलो. थैंक यू सर. Now tell me two of your weaknesses that might be a reason for your rejection in Rajasthan Administrative Services. सर रिजेक्शन के लिए तो कोई ऐसे है नहीं, क्योंकि आई एम कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग एंड आई एम रेडी टू लर्न. बट इन जनरल वीकनेस है कि मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती थी, बट मैं कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाई किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में. एंड सर सेकंड इज मैं थोड़ा कम बोलती हूँ. तो वो रिजेक्शन का कारण कैसे हो सकता है या फिर वीकनेस कैसे हुई हो? कम बोलना तो बुद्धिमत्ता की पहचान होती है. सर इट इज़, बट सब जैसे फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो. और इस जॉब में आपको वैसे भी पब्लिक डीलिंग करनी है तो बोलना तो पड़ेगी. ठीक है. आपने भी सर को कहा कि द एग्जाम अप्रोच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी. कैन यू एक्सप्लेन इट? यस सर. Sir, first of all, in the mains exam, the Hindi and English paper are not qualifying. They add to the merit. Sir, second, there is
criteria of 2 marks, 5 marks, and 10 marks. So the 2 markers and the 5 markers are generally factual. Mhm. And sir, the syllabus is even wider and there is no optional subject here. So I think that is a positive point because everyone is tested on the same basis. So what is your opinion on this factual part? Memorization part होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का या फिर ये गलत चीज़ है? सर मेमोराइजेशन होना चाहिए क्योंकि कहाँ काम आएगा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में? सर जैसे सेक्शंस हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भी रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, और किसी एरिया की कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं. तो सर जो मेमोराइजेशन पार्ट है उससे भी हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है. हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ये बढ़ता है. Good. I can see that you are quite comfortable in both in English and Hindi. But यहाँ पे आपको 90% जो पॉपुलेशन है वो राजस्थानी में कम्युनिकेट करना पड़ेगा. जी सर. राजस्थानी आती है आपको? जी सर. तो आप एक एरिया में एसडीएम तैनात हो और वहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही है. आपको 2 मिनट में उनको कन्विंस करना है कि चाइल्ड मैरिज करना बुरी बात है. रेलिवेंट सेक्शंस आपको उनको बताने और क्या क्या प्रॉब्लम्स एक चाइल्ड फेस कर सकता है चाइल्ड मैरिज के दौरान, ये आपको आपके जो नेटिव से खवाटी लैंग्वेज है उसमें कन्विंस करना है उनको. जी सर. सर पूरी कम्युनिटी को या पेरेंट्स को? पेरेंट्स हैं वहाँ पे और मतलब शादी हो रही है, आपको वहाँ पे गए हो आप और उनको कन्विंस करना है. जी सर. तो सर मैं सबसे पहले पेरेंट्स से कहूँगी कि थे जो भी चाइल्ड टाबरा को ब्याह करना चाहो हो आ गलत है मोरली भी और लीगली भी. और आज के टाइम में जब आप आगे बढ़ गया तो अपन आपने टाबरन एक फॉर्म नहीं दखेलना चाहे. यूँ अंक मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़ना आवेंगी. यानी ए टाबर आज रेडी को नहीं एक घर बसाण खातर थे अंक की शिक्षा रोक की अन नौकरियों दूर करो हो तड़कन ए आर्थिक तंगी भी फेस करेंगा. और न आज टाबर जामने के काबिल होया ही अगर आज टाबर जामने लाग जाए तड़कन टाबर भी कुपोषित होगा, माँ पर भी एक्स्ट्रा बर्डन होगा. और जो को पिताजी है अगर बिकी भी इनकम सावल नहीं हुई तो पूरा परिवार एक गरीबी की साइकिल में पड़ जाए. वो जना हर रूपों वो गलत है जना थे. ये बात ना समझो टाबरा की पढ़ाई पर और बैंक को करियर बनाने पर ध्यान दो. वेरी गुड. मान लो आप अपने जो केंद्रीय विद्यालय उनके प्रिंसिपल रहे 3 दिन के लिए, क्या मेजर रिफॉर्म्स आप लाना चाहोगे? जी सर. सर मैं टाइम ले सकती हूँ? यस सर. सर जैसे अटल इनोवेशन लैब्स हैं तो साइंस का जो अभी तक स्टडीज रहा है वो ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चों को. तो मैं उसके लिए शिक्षकों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, आजकल जैसे वीडियोस भी हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उनका यूज़ करके साइंस की तरफ उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करूँगी. सर दूसरा ये है कि जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कही गई है. तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने के लिए टीचर्स को, स्टूडेंट्स को अवगत कराया जाएगा कि आपको किसी रिजिड सब्जेक्ट चॉइस में नहीं फंसना है. आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए वेरियस फील्ड्स में. एंड सर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में प्रमोट करना चाहूँगी. मतलब होती हैं बट और भी बेहतर किया जा सकता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी. थैंक यू सर. राजस्थान के अन्य जिलों से झुंझुनू डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट क्यों है सर? प्रसिद्ध भी है, डिफरेंट है. झुंझुनू की अलग विशेषता है, ऐसी विशेषता अन्य जिलों में नहीं है. जी सर. सर पहला तो इसकी दिल्ली से निकटता है और सर अलवर इंडस्ट्रियल एरिया है उससे भी इसकी निकटता है. सर ये सेमी एरिड रीजन में फॉल करता है. कुछ पार्ट सेमी एरिड है बट फिर अरावली की तरफ जैसे खेतड़ी एंड ऑल में थोड़ा और बेहतर मौसम और मृदा है जो वो डिफरेंट है. आपके पिताजी आर्मी में हैं. जी सर. ये भी विशेषता है झुंझुनू की. जी सर. मैं भारत के सबसे ज्यादा फौजी झुंझुनू से जाते हैं. जी सर. दूसरी विशेषता वहाँ लड़कियों की शिक्षा बहुत ज्यादा है.
जी सर। झुंझुनू में और जिलों में किसी में नहीं जितनी चाहिए झुंझुनू में। जी फिर अमल का नाम सुना है? जी सर। कौन है? सर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं झुंझुनू से। आके अ, सर गांव कौन सा है? गाँव कौन सा? सॉरी सर। बगड़ के, कोई झुंझुनू में बगड़ है जगह, जी सर। वहाँ के। ये किसके रिश्तेदार है? सॉरी सर। मुकेश अंबानी के। जी सर। भारत में जैसे ये महिला राष्ट्रपति है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये पहले क्या वो कोई राजनीति में थे क्या सर ये गवर्नर रह चुके हैं। पहले? जी सर। कहाँ के? स- सर झारखंड या छत्तीसगढ़ के, आई एम नॉट। वैसे है कहाँ के वो? सर सॉरी सर। आप क्यों आरएस क्यों बनाए? आप में क्या विशेषता है? आप क्यों, आपका सिलेक्शन क्यों करें? आप बताओ, आप क्या करोगे? आप में क्या एम्बिशंस है? आप में क्या? जी सर। सर सोशल सर्विस जैसे कि इसमें मेन वो है, तो मेरा जो रुझान है, मैं जो वर्क करना चाहती हूँ पहला यही है कि जो करना चाहती हूँ वो यही है, पब्लिक वर्क। एंड सर दूसरा काम एंड कंपोज नेचर है, मुझे लगता है इसमें धैर्य के साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस, एडमिनिस्ट्रेशन में जो धैर्य चाहिए धीरे प्रोग्रेस के लिए, सेकंड वो है सर। थर्ड सर जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, महिलाओं के विकास और सुरक्षा की बातें हैं, तो सर मैं इन पे काम करना चाहूँगी। राजस्थान में कौन सी महिला एडमिनिस्ट्रेटर है जिससे आप प्रभावित है? आरएस या आईएएस? सर प्रेजेंट में टीना डाबी। कहाँ पोस्टिंग है? सर अभी बाड़मेर में। इनके क्या इसमें क्यों आईएएस में इनका नाम ज्यादा क्यों है? सर ये अच्छा काम कर रही हैं, जैसे कोरोना के टाइम में भी भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया गया था पूरे भारत में, इन्होंने अच्छा कंटेन किया था वायरस स्प्रेड को। और सर अभी नवो बाड़मेर का इन्होंने अभियान चला रखा है बाड़मेर में। तो इसमें कोई यूपीएससी में भी इनका कोई था क्या? सर इनकी रैंक फर्स्ट थी। ये विशेषता है नहीं, जी वो सर। फर्स्ट रैंक आई भी। जी सर। मैडम पहले फर्स्ट प्रयास रैंक। में। केवाईसी क्या? सर नो योर कस्टमर। किसके संदर्भ में? सर बैंक्स में भी होता है, गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी यूज होता है। SWOT एनालिसिस? स्वॉट सर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। टी? सॉरी सर, नॉट एबल टू रिकॉल। आखातीज क्या है? सर आखातीज एक भुजशावा है, ये राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस के लिए पॉपुलर है कि इस दिन चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं। आर यू तो श्योर? सर आखा पिंपल पुण्य क्या है? पिंपल पुण्य? पीपल, सॉरी सर। अभी आप राजस्थान में एक एसडीएम लगे हुए हैं, तो लोग कहते हैं अभी सब लोग 99 लगे हुए हैं। 99 लगे हुए में तो क्या काम कर रहे होंगे? सर खेत से वीड्स हटाते हैं। हाँ, उसको 99 कहते हैं। जी सर। वैसे आखातीज एक त्योहार है। राजस्थान में Sorry. नई फसल आती है तो आखातीज एक त्योहार है। बीकानेर में पतंग उड़ाते हैं। वो उस दिन वो शादियों का, जो किसान है वो शादियों का नया अन्न पूजन करते हैं। जी सर। केंद्रीय विद्यालय में कौन कौन पढ़ सकते हैं? ये किसके बच्चे पढ़ सकते हैं केंद्र? सर प्राइमरीली ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए थे, बट इसमें बाकी बच्चे भी पढ़ सकते हैं, वैकेंसी पे है मतलब। और सीताराम जी ओला कौन से मिनिस्टर थे? सॉरी सर। नाम सुना है? सर सुना है शायद। क्यों, क्या सर याद नहीं कर पा रही। झुंझुनू के है नहीं वो, इसलिए सुना आपने? झुंझुनू में है सीताराम जी ओला, झुंझुनू से लड़ते थे। ओके सर। भागीरथ चौधरी कौन है? सॉरी सर। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? सर अभी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा, पहले क्या थे? सॉरी सर। लंगड़ा आम को लंगड़ा क्यों कहते हैं? सर शायद इसके बीज की शेप की वजह से।
तेजाजी महाराज के बारे में क्या जानते हो? सर तेजाजी महाराज को सांप देवता है ये, मतलब उनके लिए पूजा जाता है, और अजमेर में इनके हर गांव में थान है। आरपीएससी का चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? सॉरी सर। आरपीएससी और यूपीएससी एग्जाम में कोई मेजर डिफरेंस? सर सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में हाँ, सर कई डिफरेंस हैं, जैसे उसमें जनरल स्टडीज एंड सी सेट के पेपर्स अलग हैं। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें मैथ्स और रीजनिंग सेम पेपर में है इन प्रीलिम्स और पेपर। ऑप्शन पेपर भी है सर ऑप्शनल पेपर यूपीएससी में है, इसमें? इसमें नहीं है सर। पहले थे, पहले थे सर। वो ऑप्शनल पेपर खत्म कर दिए। जी सर। डीजीपी कौन है राजस्थान के? सर राजीव शर्मा। कब बने? सर अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्ति हुई है उनकी। अच्छा, तो ब्यूरोक्रेसी का बॉस कौन होता है? सर ब्यूरोक्रेसी का बॉस राजस्थान में, इंटरम ऑफ राजस्थान सर चीफ सेक्रेटरी। कौन है? इंटरम ऑफ श्री इंडिया? राम निवास मेहता सर। आर यू श्योर? चीफ सेक्रेटरी सॉरी सर। सुधांशु सुधांशु पंत। कौन है? हाँ कौन है सुधांशु पंत? सर चीफ सेक्रेटरी। चीफ राजस्थान के। जी। और इंटरम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ब्यूरोक्रेसी का हेड कौन होता है पूरे भारत में? सर कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन है? सॉरी सर। चलो, ठीक है, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अभी बुलाते हैं 2 मिनट जी, में, जी। थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे। मैं कमेंट्स। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। वापस आके भी आपको अपने आप नहीं बैठना है, Sorry. ठीक है? वापस कोई बुलाएगा नहीं वहाँ बोर्ड में, वहां पर नहीं बुलाएंगे, यहीं बुलाया। या लेकिन कहीं भी कहीं ऐसा हो, कहीं आप अपने बॉस कलेक्टर से मिल रहे हैं और मिल रहे हैं और दोबारा आते हैं आप, तो भी आपको पूछ के ही आना है ना? ओके सर। तो और पूछ के ही बैठना है, जब तक नहीं कहे तब तक बैठना नहीं होता, ठीक है? अब देखो, अब हम नाम ले सकते हैं, वैसे नाम नहीं ले सकते। कविता, जी सर। ठीक है? आपका जो एक प्रॉपर कटआउट है, आप प्रॉपर कटआउट मीन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यू आर अ प्रॉपर कटआउट फॉर दैट, मीन्स यू आर मेड, यू आर बोर्न ऑफिसर, Thank आई you. टेल यू। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सनैलिटी होती है, ये भी पर्सनैलिटी टेस्ट ही है। रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर चुके हैं, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी के जो मापदंड हैं, जो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो आप लगभग 80-85% फुलफिल करते हैं, और इतना तो सब में रहता है, परफेक्ट तो कोई होता नहीं। जो लेस बता रहा हूँ मैं, तो इतने आप परफेक्ट करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि आपका जोलॉजी में ऑनर्स है, जी। तो एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाए जो कि बेसिक थे, जी सर। है ना? और थोड़ा तैयार करें, सर चूँकि मैं गलत जवाब देने से भी बच रही थी। बचो जब मत, रिवाइज गलत नहीं मत किया दो, था तो हैं? रिवाइज नहीं किया था तो एग्जैक्टली याद कर करना दीजिए कौन उसको। सा। कब है इंटरव्यू? और सर अब तो 23 को ही है। हाँ, 23 जुलाई में। यस सर। यस, कमिंग ना? यस हाँ, तो टाइम है, ब्रश कर लीजिए उसको, एक बार साफ कर लीजिए, धूल झाड़ लीजिए। जी। आपको ऐसे कंटेंट पढ़िए, उसके जो इंडेक्स है उसको ऐसा पढ़िए, देखिए कहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। करंट से आप बिल्कुल टच में रहिए। जी और ये जो आप बताते हैं कि सोशल सर्विस करना है मुझे, सोशल सर्विस करने के लिए तो वो कहते हैं कि एनजीओ बहुत हैं, आप एनजीओ में क्यों नहीं कर लेते? बड़े बड़े एनजीओज हैं, बड़े उसमें भी स्टालवर्ड्स हैं, बड़े नाम किए उन्होंने, जी सर। है ना? तो नाम ही करना है और काम ही करना है और सेवा ही करनी है, तो एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए। तो ये इससे बचिए आपकी, मुझे सेवा करनी है, जी। तो ठीक है ना? बाकी है तो ये सीधे सीधे आप राजीव शर्मा या सुधांशु पंत, ये इस तरह सीधे सीधे नाम नहीं लेना। ये भी वहाँ पे लोग जो बैठे हुए हैं उनके साथी हैं ये, जी सर।
ठीक है ना, उनके नाम से श्री लगा दें, जी लगा दें, है ना, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। श्री सुधांशु जी पंत हैं, इस तरह से। तो इनका थोड़ा सा इतना इतना तो इनका ड्यू बनता है ऑब्वियसली सर। ऑब्वियसली। तो ये कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। गुड अटायर, बढ़िया है बिल्कुल एकदम, मैंने बताया प्रॉपर कटआउट है आप। सर आज तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा। मैं फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो पास्ट 10-15 डेज से मैं टच में नहीं वी हूँ। किसने कहा बुरा? हमने नहीं, ये आपको तो हम पता नहीं है? बताएंगे। ये तो आईना बोलता है, ये आईना बोलता है, आपको खुद को ऐसा लगता है। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, दूसरों पे छोड़िए कि वो क्या बताते हैं। तैयारी करें, और सॉरी ना कहना पड़े या नहीं आता, जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। वैसे कोई भी पूरे मतलब 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है कि 30 के 30 कोई जवाब दे दे तो वो बिरला ही होगा, जी सर। कोई नहीं होता। उसमें कुछ और लैक्यूनाज होते हैं, कहीं और कहीं लैक कर रहा होता है। तो इसलिए इफ़ यू फील दैट ये हुआ तो आप कहीं और ज़्यादा अपने मार्क्स बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं है। ये आप कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है। तो आप में जो मैंने भी बताया 80 to 85 ट्रेट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और इतने तो लैक 15 तो कम हो सकते हैं, और उनमें भी तुम मतलब अभी और थोड़ा सा मेहनत करो तो और रिकवर कर सकते जी हो। सर, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो अभी इस वीक मतलब पूरा आगे से पूरा निकलेगा कर ले, तो। पूरा कर, एक मॉक दे दे तो बहुत अच्छा है, जी उसके सर। बाद तैयार करके, ठीक जी है। सर। हाँ सर। थैंक यू सर। तो आई कांटेक्ट का थोड़ा 80-20 रूल फॉलो करना है, बाकी लोगों को भी थोड़ा हल्के से गेज करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है ना। इग्नोर्ड फील नहीं होनी चाहिए। एग्जिट में आपने सीधा आप उठ के और चले गए तो वेट करना है जब तक नहीं बोले, फिर थैंक यू बोले। सर आई थिंक आई सेड थैंक यू। आई थिंक थैंक यू बोला था कि मैंने? बोल। अच्छा, मतलब लीव करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। जी। मीडियम का ऐसा है कि जब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो इंग्लिश में जवाब देना, हिंदी में पूछे तो हिंदी में, आप दोनों में कंफर्टेबल हो तो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे सर ने कहा टीना डाबी नहीं, टीना डाबी में एम लगा दो या श्रीमती टीना डाबी लगा दो, ठीक है। तो क्योंकि सीनियर है वो अपने, तो ध्यान रखना है चीज़ का। करंट अफेयर्स से थोड़ा ब्रशअप करना पड़ेगा, और राजस्थान स्पेसिफिक क्योंकि दिक्कत आएगी आपको थोड़ी, तो थोड़ा मैराथन होते हैं यूट्यूब पे, तो राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 3 मैराथन देख लो आप, वो हिंदी में ही मिलेंगी आपको पुराने टीचर्स की, बट उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है चीज़ों का, है ना। क्योंकि जैसे सर रैपिड फायर करते हैं ना, एक मेंबर वहाँ पे रैपिड फायर करेगा ही करेगा, है ना। वो आपको जांच करने के लिए कि आप घबराते तो नहीं है। सबका आना जरूरी नहीं है उत्तर, मेरे को भी पता है, मेरे को भी नहीं आता कुछ। फैक्चुअल में तो घबरा जाती हूँ नहीं, मैं। घबराना नहीं है ना, सॉरी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने आते हैं आप तो टारगेट करके करेंगे, 10 क्वेश्चन में 2 का जवाब दूंगी, बाकी 8 में सॉरी बोल दूंगी, कोई इशू नहीं है। और मान लो पहला ही रैपिड फायर चल गया और फिर बाद में तो आपको पूरा एंट्री बिगड़ जाएगा ना, तो घबराना नहीं है। मतलब इट्स योर राइट टू से सॉरी, सिंपल सी बात है। अगेन 10 क्वेश्चन में यदि आप 2 भी ढंग से जवाब दे देते हो उसमें बोर्ड इम्प्रेस हो जाता है, 8 मायने नहीं रखते। नोटिस वाला टेस्ट हो चुका है आपका। तो राजस्थान पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की मैराथन आप जरूर देख लेना, 5-5, 6-6 घंटे की होती है, डेली एक भी देखोगे तो भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा, बाकी आप अपना काम करते रहो। आरपीसी के चेयरमैन साहब को उन्हें ये पता होना चाहिए ना अपने को, जब हम आरपीसी के लिए जा रहे हैं, तो यूपीएससी के अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्हें, तो स्पेशली झुंझुनू के जितने भी डिग्नेटरीज है ना, झुंझुनू के पर्सनलिटीज आप डालना गूगल पे या चैटजीपीटी पे, तो 10-15 लोगों के नाम आएंगे, सीसा मोला जी हो गया ऐसे, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट की आपकी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी देख लेना, जैसे फौज वाली वो चीज़ें, फौज में फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट फौज में, फादर बातों बातों में बात आई जाती है, फादर आपके उसमें है तो आर्मी में, तो उन्होंने क्या किया था, सैम मानेकशॉ अगर पूछा जाए तो उन्होंने पुतले बना के और ज़मीन पे डाल दिए थे, ऐसे यूं 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 बिछा दिए थे, ठीक है ना। तो जब ऊपर से उनका प्लेन आया और उसने देखा कि इतनी फौज है वहाँ पे मौजूद, तो उसने रिपोर्ट किया कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री आई हुई है, जबकि मिलिट्री वहाँ इतनी थी नहीं। तो मैंने कहा था एंटी कैमोफ्लैज क्या होता है, कुछ चीज़ छुपानी है तो कुछ दिखानी है, वो दिखाया था उस टाइम, ठीक है ना। जस्ट डबल कर दी थी आर्मी को अपनी। क्योंकि प्रिपरेशन के लिए काफ़ी टाइम मिल गया हाँ। था। गेस वर्क अवॉइड करना है, जो नहीं आता उसमें सॉरी बोलो, और करना भी है तो पहले परमिशन मांग लो हमसे, ठीक है। ओके सर। उसके अलावा जैसे मैंने केवी का पूछा था कि प्रिंसिपल आप रहोगे तो 3-4 अप्रोचेज होती है, तो जैसे उसमें वन ऑफ द अप्रोच इज स्टेक होल्डर अप्रोच, आप यूपीसी में पढ़ते होंगे आंसर करते टाइम। तो आपने सारा फोकस क्या किया, स्टूडेंट डेवलपमेंट पे किया। आप प्रिंसिपल हो तो आपकी जिम्मेदारी, आप टीचर के बारे में भी सोचोगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती है,
हाँ, तो स्टेक होल्डर अप्रोच से क्या है कि होलिस्टिक आपका व्यू पॉइंट हमें पता लगता है कि यार आप अपने टीचर्स के बारे में भी कंसर्न हो कि उनको क्वार्टर सही मिले हुए या नहीं मिले हुए, उनको वेतन टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा, और भी जो भी प्रॉब्लम्स आपको पता होगी टीचर्स की प्रॉब्लम है। एक स्टेक होल्डर टीचर हो गए, एक स्टेक होल्डर आपके स्टूडेंट हो गए, एक आपके दूसरा वर्किंग स्टाफ हो सकता है, लैब टेक्नीशियंस वगैरह हो सकते हैं। तो फिर लगता है कि यार आप सारे आयामों से सोच रहे हो, जी है ना। तो लाइफ साइकिल अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, जैसे महिलाओं के प्रॉब्लम्स के बारे में देखा, तो राइट फ्रॉम द बर्थ से भी पहले पीसीपी एनडीटी एक्ट से आप शुरू करो कि भ्रूण हत्या हो जाती है, फिर बर्थ हुआ, फिर टीकाकरण हुआ, बड़े हुए, फिर पेंशन तक चले जाओ आप, तो फिर लगता है आपकी अप्रोच काफ़ी सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ना। बाकी अच्छा है आपका, कॉन्फिडेंट हो एंड यू विल डू गुड। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर। आप एक बात ध्यान रखना, आप किसी से कम नहीं हो। आपने तो खुद का इंटरव्यू एक ही दिया है, हमने सबका इंटरव्यू दिया, औरों से आप बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। क्या क्या वो आदमी सेना के अंदर जाता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है तो मारती भी आ जाता है। जी इसलिए अपने को हारना नहीं है। आप तो जीते हुए बंदे हो। आपका तो आप अपने जिले के संबंध में, तो करंट नॉलेज के संबंध में, फौज के संबंध में, तो पिताजी का नाम आ जाए तो फिर फौज की तीनों स्ट्रीम के संबंध में, इनके तीनों के सर्वोच्च कमांडर कौन है, सीडीएस कौन है, पहले सीडीएस कौन थे, इससे थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज अपने रखनी है। और ये अपडेट आप करते जाओ। रोजीना अखबार रोज पढ़ लिया ये ठीक है। थोड़ा मारवाड़ी पर ये जैसे बोलना, क्यों राजस्थान में नौकरी करनी है अपने को, जी सर। तो आप तो कॉन्फिडेंट रहो। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपका सिलेक्शन पक्का है। हम आपने यहीं रहेंगे, निकाल लेना। लोगों से अपने लोकल लैंग्वेज में, मायड़ भाषा में आपने बात करी नहीं, और वो आपके वो हुए नहीं मुरीद। जी बोले सर। भाई मैडम मैडम और मैडम हो जिस तरीके से जाए। आप उत्तर दे रहे हो ना, ये परफेक्ट है। वैसे ऐसे जगह मैं जानबूझ कर ज्यादा पूछ रहा हूँ ताकि आप कोई डिफेंसिव हो क्या, ओफेंसिव हो क्या, ठीक है नहीं। तो आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है, आप अच्छा ही लोगे। देखिए एक वेब सीरीज है खाकी नाम से, तो उसमें वो आईपीएस ऑफिसर पूछता है, क्राउड कंट्रोल वगैरह जाता है, तो पूछते हैं कि मैं जो सबॉर्डिनेट है कांस्टेबल, वो बोलते हैं कि सर आप इनके हो जाओ बस एक बार, ये आपके लिए जान भी दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ कैसे, मैं तो बाहर का हूँ। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप ना हम बोलना स्टार्ट कर दो, मैं की जगह 80% तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो बस ये जो राजस्थानी लैंग्वेज है ना, आप जिस दिन राजस्थानी लैंग्वेज बोलने लग जाओगे, वो इतने फैल हो जाएंगे कि देखो मैडम एसडीएम में फिर भी हमारी भाषा बोल रही है। तो इन चीज़ों का फर्क। अपने पीएम क्या करते हैं, जहाँ जिस देश में जाते हैं उस देश के हो जाते हैं, इसलिए संसार की प्रिय है। जी सर। आपका परफेक्ट है, हमारी शुभकामनाएं। थैंक ऑल द बेस्ट। आरएस बन के ही मिलना। यू सो मच।